Today we are going to study translation. What is translation? Polymerization of amino acids to form a polypeptide. So polymerization, there are several amino acids and these amino acids get attached with the help of peptide bond, and this is called polymerization. So amino acid polymerizes to form polypeptide, and one or more than one polypeptide make protein. So in other words, you can say that formation of protein is called translation. Ribosome is site of protein synthesis. So we are going to study about protein synthesis. Then first question arises, where protein synthesis occur. So protein synthesis occur inside ribosome. It is made up of two subunits. It means ribosomes are made up of two subunits. One is smaller in size, so it is called smaller subunit, and another is larger in size, so it is called larger subunits. So they and larger subunits having two sites, two places for charged tRNA. Next term is aminoacylation, very important term. This is also known as charging of tRNA. It needs energy for ATP, from ATP to get attached with a particular amino acid. It means one transfer RNA or tRNA gets attached with a particular amino acid, and this attachment of tRNA with amino acid called aminoacylation, and this requires a lot of energy which comes from ATP. So if tRNA gets attached with amino acid, there is a bond formation between tRNA and amino acid, and this bond is having energy. So we used to say that DNA has become charged. It needs energy from ATP to get attached with a particular amino acid. So for aminoacylation, energy is required, and this energy comes from ATP. tRNA tRNA attached with amino acid is called charged tRNA, and this process is called aminoacylation of tRNA. So attachment of amino acid with tRNA is aminoacylation, and energy required for aminoacylation comes from ATP. Next point, messenger RNA is required for translation. Messenger RNA must be present for translation. It has UTR. Both end of messenger RNA has some sequences which cannot be translated. So this two end portion which is not being translated is called untranslated region. So it has UTR, untranslated region, on both ends to facilitate translation. So if this UTR is not translated, what is its utility? Its utility is to facilitate process of translation. At 5' end AUG after UTR, at 5' end of mRNA,
At 5' AUG is present, and this AUG plays two roles. One, it acts as initiation codon. It starts initiation of translation process. So at 5' end, AUG initiation codon is present. When a smaller ribosomal subunit binds to AUG, so what happens? mRNA after UTR at 5' end is having AUG, and a smaller subunit gets attached with messenger RNA and translation starts. So when smaller ribosomal units bind to AUG, translation initiates. Then codes for polypeptide are present at the stop and the stop codon. After AUG, there are other sequences of codons which made to brings through tRNA different amino acids to form polypeptide, and after that stop codon is present which cause terminalization. So there are three steps in translation. First is initiation, then elongation of elongation of polypeptide chain, and after that termination of polypeptide chain. So stop codon is responsible for termination of polypeptide chain formation. So stop codon is present followed by UTR, and after stop codon again untranslated region is present at 3' end also. Two charged tRNA come one by one on larger subunit side. So first what happens, messenger RNA gets attached with ribosomal smaller subunit, then larger subunit comes to smaller subunit, and you know smaller subunit is having two sides, so two charged tRNA comes to this two sides of larger subunit. A peptide bond is formed between two amino acids. Now these two charged tRNA are closer to each other, so amino acids attached to these two charged tRNA are also closer to each other, and therefore a peptide bond is formed in between these two amino acids, which get energy from charged tRNA. Again, peptide bond formation require energy, and this energy is obtained from charged tRNA. Next point, there is no charged tRNA for stop codon. So, no amino acid will be brought for stop codon, and hence translation process will come to the end. Translating codons when reaches to stop codon, translation completed. A release factor binds to stop codon. Then if there is no charged tRNA for stop codon, instead of that what happens, a release factor comes and gets attached with stop codon. So a release factors binds to stop codon, causing stop polypeptide formation. So as soon as release factor gets attached with stop codon, polypeptide formation is stopped, and this release factor also causes release of newly formed mRNA from newly formed polypeptide from mRNA. So this is entire process of translation.
Now we will study regulation of gene expression. Gene expression is regulated at following four levels. What is gene expression? DNA sequences form messenger RNA and accordingly codons on messenger RNA. According to codons on messenger RNA, polypeptide is formed. So sequence of amino acid. So actually what happens? Genetic masses which is stored in DNA is transferred from DNA to RNA and then from RNA to protein. This is called gene expression. Then how this is controlled, this expression is regulated. So gene expression is regulated at following four levels. First is transcriptional level. So formation of primary transcript. So what is primary transcript? DNA, one template of DNA from RNA, your messenger RNA, and this RNA is having exon and intron both parts, and if intron parts are present, this RNA will be non-functional. So as soon as RNA is formed, this RNA is called primary transcript and this is non-functional. Then second, expression of gene is controlled at processing level. Then question arises, what is processing? So regulation of splicing. Processing level means regulation of splicing, and splicing means removal of non-functional intron parts from primary transcript. The removal of non-functional intron parts from primary transcript is called splicing. Then third point, transport of mRNA. If splicing is completed, then mRNA is formed and this mRNA is transported from nucleus to cytoplasm of the same cell for translation. Then last level of gene regulation or gene expression regulation is translational level. So there are two examples of gene regulations. First, lactose hydrolysis by beta galactosidase. Lactose hydrolysis takes place inside bacteria with the help of beta galactosidase. And by hydrolysis, lactose produces galactose and glucose. This beta galactosidase is added in this name, so obviously it is a type of protein. The proteinous enzyme. The formation of this beta galactosidase, yani formation of this type of protein, is required for hydrolysis of glucose only if glucose is present. If glucose is absent, this enzyme is not required. So gene forming this enzyme need not to be expressed, and it is not expressed in absence of lactose. Hence its expression is regulated by presence or absence of lactose. One correction is required. Here should be hydrolysis of lactose. Here should be lactose.
here also lactose. In very simple way, we know that beta galactosidase is required for hydrolysis of lactose. So when lactose is present, there is need of beta galactosidase and it is synthesized, it is formed or produced. And if lactose is not present, there is no need of beta galactosidase, so it is not present. Thus formation of beta galactosidase enzyme is dependent upon presence or absence of lactose. So presence or absence of lactose is regulating here expression of the gene which is responsible for production of beta galactosidase. Okay. Then second example of gene regulation, expression of gene regulation. Coordinated regulation of expression of several set of genes leads to development and differentiation of embryo into adult organisms. After birth, before birth embryo develops into young one, and after birth this young one develops into adult organism, and these entire processes needs regulation, expression of several enzymes, and all these enzymes which is involved in embryo formation or its development up to adult is regulated or controlled in a coordinated manner. RNA polymerase interact with some accessory proteins which helps it to recognize start site at promoter. So RNA polymerase interact with some accessory protein. So RNA polymerase react with some accessory proteins which help to recognize start site at promoter. These accessory proteins may be activator. So this RNA polymerase attaches with accessory proteins, and this accessory protein may play two types of role. In some cases it is playing positive role, in some cases it is playing negative role. So if it is playing positive role, this protein is called activator, and if it is playing negative role, it is called repressor. Next point, in prokaryote proteins interact with some sequences on DNA called operator. Operator region is adjacent. So this protein, accessory protein, in prokaryote proteins interact with some sequences on DNA called operator. So this accessory protein gets attached with operator in prokaryotic case. Operator regions is adjacent to promoter. So you know transcription unit contain promoter at 5' end, and just adjacent to promoter operator region yani some sequences of nitrogenous bases called operator. So operator region is present, and some accessory proteins get attached with this operator. So region adjacent to promoter, and operator binds to repressor protein. This accessory protein is also known as repressor protein if it is having negative effect. So this repressor binds to operator protein in most of the cases. Each operon has its specific operator.
and specific repressor. So specific operator is present for each operon, and for that operon specific repressor is also present. Example, lac operon has lac operator and lac repressor. So lac is used for lactose, brief short form of lactose. So lactose hydrolysis concerned operon is called lac operon, and operator present just near to promoter site of lac operon is called lac operator, and protein, accessory protein which gets attached with this operator is called lac repressor. Lac operon. In lac operon, a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene, and this operon is found in bacteria, and this is called lac operon. So lac operon consists of regulator, I gene, I for inhibitor, lac operon consists of regulator, that is known as I gene. I is here for inhibitor, which codes for repressor protein of lac operon. इसको सीधे से शब्दों में समझे हम लोग कि lac operon का एक जीन है आई जीन, और ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है. इस प्रोटीन को हम रिप्रेशर प्रोटीन कहते हैं. Lac operon contains 3 structural gene. Lac operon में Z, Y और A 3 structural gene पाए जाते हैं. इसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि एक घर में एक ही स्विच से बल्ब भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है और टीवी भी चल रहा है. तो 3 एप्लायंसेस हो गए, Z, Y और A, लेकिन स्विच एक ही है. आप ऑन करोगे तो तीनों ऑन होगा, ऑफ करोगे तो तीनों ऑफ होगा. तो लगभग उसी तरह की स्थिति यहाँ है. ये 3 जीन हैं Z, Y और A, और ये एक ही ऑपरेटर यानी स्विच के द्वारा रेगुलेट होते हैं. तो कैसे हो रहा है उसको धीरे धीरे हम लोग देखते हैं, और तीनों का क्या काम है उसको पहले देखें. तो Z जीन synthesizes बीटा गैलेक्टोसाइडेज. अब जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए आपको लाइट का, यानी ट्यूब लाइट हो, पंखा का, सीलिंग फैन या टेबल फैन जो भी है, और टीवी का. तो तीनों एप्लायंसेस का कुछ ना कुछ काम है ना. एक का काम है लाइट देना, दूसरे का काम है हवा देना, और तीसरे का काम है कोई प्रोग्राम आपको दिखा रहा है टीवी पर. ठीक है. तो ये तीनों के अलग अलग फंक्शन है. ठीक उसी तरह से यहाँ जो ये 3 जीन हैं, तीनों का अलग अलग फंक्शन है. तो क्या क्या फंक्शन है कि करके हम लोग देखते हैं. तो जेड वाला जो है ये एक प्रोटीन बनाता है, खास तरह का प्रोटीन, और वो प्रोटीन एंजाइम का काम करता है, और उस एंजाइम को हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के नाम से जानते हैं. तो जेड वाले का काम हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाना. अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ठीक है, which causes hydrolysis of lactose. अभी जस्ट इसके पहले भी देखे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम है लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करना, और लैक्टोज डाइसैकेराइड है, यानी 2 मोनोसैकेराइड इसमें आपस में जुड़े हुए रहते हैं.
कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे? दो मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। तो दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े हुए हैं और वो लैक्टोज का निर्माण करते हैं। तो जब उस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो वो दोनों मोनोमर मिलेंगे वापस। सो लैक्टोज डाइसेकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड्स galactose and glucose. तो beta galactosidase is responsible for formation of galactose and glucose from lactose by the process of hydrolysis. Then Y gene. So these are three structural gene. First was Z, second is Y. Y gene. What is function of this Y gene? It forms permease. This is another kind of protein and ase is attached in its name. So it is also a type of enzyme. Y also form enzyme called permease. What is its function? Which increases permeability of cell to beta galactosidase. अगर permease पाया जा रहा है तो beta galactosidase की के लिए सेल की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी सेल के अक्रॉस ये आसानी से पास हो सकता है। ए जीन का क्या फंक्शन है? सिंथेसाइज ट्रांस एसिटाइलेज। तो आप देख रहे हो कि तीन जीन है स्ट्रक्चरल जीन में, जेड, वाई और ए, और तीनों अलग अलग तरह के एंजाइम सिंथेसाइज कर रहे हैं। All the above mentioned enzymes यानी Z, Y and A formed by structural genes. तो Z, Y और A तीन स्ट्रक्चरल जीन थे और उस तीन स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा आपने देखा तीन एंजाइम बना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। Required all the above mentioned enzymes यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज formed by structural genes are required for lactose metabolism. Thus genes in operon are required for same और related metabolism. तो कह रहा है तीनों की आवश्यकता लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए ही होती है, इस तीनों जीन की। लैक्टोज इज ए सबस्ट्रेट ऑफ ऑपरॉन, इसलिए तो इसका नाम लैक ऑपरॉन है। लैक्टोज ही यहाँ सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ द लैक ऑपरॉन। अब कह रहा है कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक ऑपरॉन ऑन रहेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस के लिए उसकी जरूरत है, और लैक्टोज अगर प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोलाइसिस किसका होगा? लैक्टोज है ही नहीं, तो स्विच ऑफ रहेगा। तो लैक ऑपरॉन का स्विच ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? लैक्टोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सो लैक्टोज इज कॉल्ड इंड्यूसर। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट रहेगा तो स्विच ऑन रहेगा, तो इस केस में लैक्टोज सबस्ट्रेट जो है उसको हम इंड्यूसर कहेंगे। I gene of lac operon produces repressure continuously all times। कह रहा है कि लैक ऑपरॉन में जो आई जीन होता है, यहाँ स्मॉल आई होना चाहिए, ऑटो करेक्ट कर देता है इसको। I gene of lac operon produces repressure continuously all the times। तो आई जीन हमेशा काम करता रहता है, इसको हाउस कीपिंग जीन भी कहा जाता है ऐसे जीन को, जो कंटिन्यूसली काम करता रहेगा। ऐसे कोई मतलब नहीं है लैक्टोज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको काम करना ही है, इसको प्रोटीन बनाना ही है और इसके द्वारा बनाए प्रोटीन को हम रिप्रेशर कह रहे हैं। अब ये रिप्रेशर क्या करेगा?
which binds to operator region, वही जो स्विच की बात कर रहे थे, तो ये ऑपरेटर रीजन पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस है डीएनए का, और इसी से आके ये रिप्रेशर प्रोटीन जो आई जीन के द्वारा बना वो आके लग जाएगा। जब आकर के लग गया रिप्रेशर इस ऑपरेटर के साथ, क्या होगा देखिए, प्रिवेंटिंग आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। ऑपरेटर से अगर रिप्रेशर लग गया यानी ट्रांसक्रिप्शन का काम बंद रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा सकता आरएनए पॉलीमरेज। बट इफ इंड्यूसर, अभी आपने पढ़ा कि लैक्टोज को हम इंड्यूसर भी कहते हैं, बट इफ इंड्यूसर यानी लैक्टोज इज प्रेजेंट, इट प्रिवेंट्स रिप्रेशर फ्रॉम बाइंडिंग टू ऑपरेटर रीजन। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो वो लैक्टोज जाके रिप्रेसर से अटैच हो जाएगा, और जब अटैच हो गया रिप्रेशर के साथ लैक्टोज, तो रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाएगा। अब वो ऑपरेटर के साथ जाके नहीं लग सकता, यानी स्विच को ऑफ नहीं कर सकता। वो नहीं लगा हुआ है मीन्स स्विच ऑन है, इट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा तो आपको बतला चुके कि इकलौता स्विच वो है। अगर वो ऑन है तो क्या होगा, तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई और ए जो थे वो आरएनए एंजाइम बनवाएंगे। कौन कौन से एंजाइम बनवाएंगे हम लोग देख चुके बार बार, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। तो बस यही लैक ऑपरोन है। सो आरएनए पॉलीमरेज इज फ्री टू ट्रांसक्राइब। तो अगर लैक्टोज रिप्रेशर के साथ अटैच हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज फ्री है, ऑपरेटर फ्री है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा, डिफरेंट एंजाइम्स बनवाएगा, मींस स्विच ऑफ लैक ऑपरॉन इज ऑन। जो स्विच था लैक ऑपरॉन का वो ऑन हो गया। ऑन हो गया मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी फिर ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तभी तो एंजाइम बनेगा। एंजाइम प्रोटीन होता है तो ट्रांसलेशन हुए बिना होगा नहीं। तो रेगुलेशन ऑफ ऑपरॉन बाय रिप्रेशर इज नेगेटिव रेगुलेशन। तो ये भी एग्जाम्पल है, नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल आपको पूछता है तो लैक ऑपरॉन के लिए कह रहा है कि ये नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है कि अगर देन लो लेवल ऑफ ऑपरॉन वर्क्स। एक और भी बात ध्यान देने की है कि लो लेवल ऑफ ऑपरॉन वर्क्स ऑल द टाइम। कह रहा लैक्टोज रहे या ना रहे, लो लेवल पर ऑपरॉन हमेशा वर्क करता रहता है, और उसके द्वारा परमिएज बनेगा, थोड़े से ही अमाउंट में बने लेकिन बनेगा। सो परमिएज इज फॉर्म्ड एंड इन एब्सेंस ऑफ फेवरेबल सोर्स ग्लूकोज। तो परमिएज वहां बनता रहता है, लैकोपरॉन स्लो रेट पर काम करता रहता है, और फेवरेबल सोर्स बैक्टीरिया का है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज नहीं मिला तब वो लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा, अगर दोनों मिले उसको तो वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। सो इफ लैक्टोज इज अवेलेबल, तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और उसके अंदर स्लो रेट पर क्या कहते हैं, उसके अंदर स्लो रेट पर हाँ लैक ऑपरॉन काम कर रहा है। लैक ऑपरॉन काम कर रहा है तो परमिएज बन रहा है, और ग्लूकोज अवेलेबल वहां है नहीं, ग्लूकोज के बदले लैक्टोज अवेलेबल है। तो ये परमिएज क्या करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ा देगा बैक्टीरियल सेल की लैक्टोज के लिए, जिसके चलते लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर आया तो आपको पता है कि स्विच ऑन हो जाएगा लैकोपरॉन का, और फास्ट रेट पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटाइलेज और परमिएज सब बनने लगेगा। It inside the cell for hydrolysis। तो परमिएज की उपस्थिति के चलते, परमिएज का काम है अगर बाहर लैक्टोज है तो उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर लाने में हेल्प करेगा, ताकि उसका हाइड्रोलाइसिस हो सके और बैक्टीरिया को एनर्जी मिल सके।
अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ ए जीन। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पेयर में कोई चेंज आ गया, पहले जैसा नहीं है, तो इसी को हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ ए जीन फॉर्मिंग बीटा ग्लोबिन चेन रिप्लेस ग्लूटामिक एसिड। इसके पहले आप सिकल सेल एनीमिया पढ़े ही हो, और उस केस में आपने देखा कि बस सिंगल बेस पेयर में चेंज हो गया, जिसके चलते कि बीटा ग्लोबिन चेन जो हीमोग्लोबिन का होता है, उसमें जहां पर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए उसकी जगह पर वैलिन आ गया, रिप्लेस कर दिया वैलिन ने ग्लूटामिक एसिड को। तो ये पॉइंट म्यूटेशन का गुड एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। और इस केस में क्या सिकल सेल एनीमिया इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस केस में सिकल के जैसा, हंसिया के जैसा आरबीसी का शेप हो जाता है। Second type of mutation is frame shift mutation. In this mutation, reading frame is shifted. You can understand it very easily from following examples. तो insertion, अगर कोई नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है और उसमें कहीं भी आपने मतलब डल जाता है अगर म्यूटेशन के द्वारा कोई नाइट्रोजनस बेस एक्स्ट्रा, तो उसको कहते हैं इंसर्शन। और अगर कोई नाइट्रोजनस बेस वहां से रिमूव हो गया तो उसको कहते हैं डिलीशन। तो फ्रेम शिफ्ट में क्या हो रहा है? इंसर्शन और डिलीशन, कोई भी केस होगा, दोनों में ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस और बेसेस चेंजेस रीडिंग फ्रेम फ्रॉम दैट पॉइंट। जहां पर इंसर्शन हुआ वहां से आगे रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, या जहां डिलीशन हुआ वहां से आगे सारा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, व्हेन 3 or multiple of 3 bases are deleted or inserted, reading frame remains same. रीडिंग फ्रेम रिमेन सेम प्रायर, तो पहले जहां इंसर्शन या डिलीशन हुआ है वहां से पहले रीडिंग फ्रेम सेम होगा अगर 3 या 3 का मल्टीपल इंसर्शन या डिलीशन हुआ है। एंड लेटर टू द इंसर्शन और डिलीशन, तो जहां हुआ है 3 या 3 का मल्टीपल अगर है तो जहां पर इंसर्शन या डिलीशन हुआ है सिर्फ वहीं पर चेंज होगा, उसके पहले या उसके बाद रीडिंग फ्रेम में कोई चेंज नहीं दिखेगा। म्यूटेशन विच कॉजेज चेंज इन रीडिंग फ्रेम, तो ऐसा म्यूटेशन जो रीडिंग फ्रेम में चेंज लाता हो उसी को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया है। सपोज देयर इज ए सेंटेंस राम हैज रेड कैप। अब यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस में उसी में देखिए राम हैज, अब यहाँ हैज के बाद एक लेटर यानी एक नाइट्रोजनस बेस मान रहे हैं सारे लेटर को, एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर इंसर्ट हो गया या एक लेटर यहाँ बी इंसर्ट हो गया। अब हम क्या पढ़ पाएंगे इसको? 3 ही पढ़ना है एक साथ। तो राम हैज ब्रे DCAP, ये हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ तक तो हम ठीक पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ रहे थे, राम हैज तक कोई समस्या नहीं है। राम हैज के बाद इंसर्शन हुआ है इस लेटर का, और इसलिए जहां इंसर्शन हुआ है वहां से रीडिंग फ्रेम हमारा शिफ्ट हो गया। आप पढ़ रहे हैं ब्रे DCAP, जबकि यहाँ रेड कैप पढ़ रहे थे। फिर इसी में अगर एक और इंसर्शन हो जाए, नेक्स्ट लाइन में देखिए कि बी के बाद एक और लेटर यानी दूसरा नाइट्रोजनस बेस मान लें तो दूसरा भी आ गया है,
तो 2 लेटर इसमें चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो अब फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, राम हैज बीर ईडीसी एपी। तो क्या है, पहले जो पढ़ पा रहे थे वैसा अब नहीं पढ़ पा रहे हैं। कहाँ से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जहां पर इंसर्शन हो रहा है। फिर अब देखिए तीसरा सेंटेंस, उसी में एक और लेटर इंसर्ट हो गया जी, यानी मान लीजिए कि नाइट्रोजनस बेस एक और इंसर्ट हो गया। तो अब पढ़ेंगे राम हैज बिग। तो यहाँ बिग था नहीं हमारे सेंटेंस में, जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसमें बिग था नहीं, यानी यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, एक 3 नाइट्रोजनस बेस का समूह आ गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ था या पहले जो कुछ था सेम पढ़ पा रहे हैं। राम हैज पहले जैसा ही है, रेड कैप पहले जैसा ही है। तो 3 या 3 का मल्टीपल अगर इंसर्शन हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर इंसर्शन हो रहा है सिर्फ उसी पॉइंट पर रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हुआ है, उसके पहले या उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक इसी तरह से हम डिलीशन का एग्जाम्पल भी देखेंगे उसी सेंटेंस में। राम हैज रेड कैप था, आर डिलीट हो गया, आर हट गया। तो अब हम पढ़ पा रहे हैं राम हैज ईडीसी एपी। ये डिलीट जो हुआ इसको हम यहाँ रेड कलर से दिखाएं, समझने के लिए बगल में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए राम हैज, एक और लेटर डिलीट हो गया, ई भी हट गया, यहाँ से ई हट गया तो बच गया डी सी ए और पी। तो राम हैज डी सी ए पी। फिर एक और लेटर डिलीट हो गया, डी भी डिलीट हो गया, तब क्या बच जा रहा है, राम हैज कैप। ठीक है, अब इस सेंटेंस को यहां से कंपेयर करें, राम हैज रेड कैप हमारे पास था, तो फर्क क्या पड़ा, रेड हट गया। लेकिन रेड के पहले जो सेंटेंस था हमारा वही है, राम हैज, अगर 3 लेटर डिलीट होता है तो, और है जहां डिलीट हुआ है उसके बाद भी कैप जो था वही सेम है। तो जिस पॉइंट पर 3 या मल्टीपल ऑफ 3 का डिलीशन हुआ, सिर्फ उसी पॉइंट पर चेंज आएगा, उसके पहले और उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये इंसर्शन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल था, और ये डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए which forms a structural part of ribosome, and this is tRNA. So we are going to study about tRNA. tRNA is also known as adapter molecule. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाई इट इज कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसी टीआरएनए को पहले हम सॉल्युबल आरएनए कहा करते थे, और इसलिए सॉल्युबल का पहला लेटर एस है तो इसको हम आरएनए के नाम से जानते थे पहले, बाद में उसी को अब टीआरएनए कहा जाने लगा। तो सॉल्युबल आरएनए और एस आरएनए रीड्स कोड एंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक एमिनो एसिड। तो ये 2 काम करता है, एक क्या करता है, इसको पढ़ने आता है, मैसेंजर आरएनए पर क्या कोड है उसको ये पढ़ सकता है, और दूसरा काम ये क्या करता है, जैसा जो लिखा हुआ है कोड उसको पढ़ा और उसके अकॉर्डिंगली कंसर्न्ड एमिनो एसिड, पर्टिकुलर एमिनो एसिड के साथ जाके अटैच हो जाता है। tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड। हर एक एमिनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA होगा, तो इसलिए कह रहे हैं tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट है इनिशिएटर tRNA फॉर इनिशिएशन कोडॉन। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इनिशिएशन कोडॉन AUG है, वहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो उस AUG का जो एंटी कोडॉन होगा वैसा tRNA, और AUG मिथ्योनिन के लिए कोड करता है,
वो मेथियोनिन के साथ अटैच होगा, यानी उस टीआरएनए का एमिनो एसाइलेशन होगा और तब वो जाके कोडोन जो एयूजी है उसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल हमने दिया है, यूएसी मान लीजिए कोई कोडोन है और ये टीआरएनए है, तो टीआरएनए का एंटी कोडोन इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो एयूजी एंटी कोडोन है। तो ऐसे टीआरएनए इसके पास आएगा यूएसी के पास, जिसके पास इसका एंटी कोडोन होगा, और ये एयूजी जिस एमिनो एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वही एमिनो एसिड यहाँ अटैच होगा और उसको लेकर के ये टीआरएनए यहाँ के लग जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि ये टीआरएनए है, डायग्रामेटिक फिगर बनाया हुआ है। तो ये टीआरएनए अगर है तो इसके दो पार्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक ये एंटी कोडॉन वाला पार्ट है, देखिए लेवल किया हुआ है एंटी कोडॉन। तो एंटी कोडॉन क्यों कहते हैं आप समझ रहे हो, ये जो कोडॉन है मैसेंजर आरएनए है, ये लाइन जो दिखा रहे हैं मैसेंजर आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पर यूएसी तो है कोडॉन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन जो है टीआरएनए पर वो एंटी कोडॉन कहलाया। और दूसरा एंड जो होता है टीआरएनए का उसके साथ एमिनो एसिड अटैच होता है, देख ही रहे हैं एमिनो एसिड अटैच दिखाया गया है, इसलिए इस एंड को कहते हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। Initiator tRNA for initiator codon is present, but there is no tRNA for stop codon. तो जितने भी कोडोन हैं अनट्रांसलेटेड रीजन वाले कोडोन को छोड़ के और स्टॉप कोडोन को छोड़ के बाकी सारे कोडोन के लिए फिक्स है ट्रांसफर आरएनए। इसका शेप एक्चुअल में कैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइक शेप ऑफ टीआरएनए। इट इज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, its compact structure is inverted L like.